वेलकम बैक। भारद्वाज गुरुकुल एक्सक्लूसिव स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। इट इज अ परफेक्ट एंड राइट प्लेस फॉर लर्निंग with clear explanation in Hindi and English. Here concept based learning with expert explanation के साथ so like and subscribe जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आपके लर्निंग अच्छे से हो सके. Now today topic is compound interest. प्रीवियस हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख चुके हैं और कर भी चुके हैं. नाउ इट इज पार्ट 4 जिसमें हम एमसीक्यूज एंड चैप्टर टेस्ट करेंगे. सो नाउ लेट स्टार्ट. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 1. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 at 10% per annum compounded annually for 2 years is ऑप्शन दिए हुए हैं ₹190, ₹200, ₹210, ₹1210. आंसर होगा ₹210. तो लेट चेक करते हैं. सीआई हम लोग निकाल सकते हैं. सीआई का फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर बाई 100 द पावर n माइनस 1 है ना. जैसे हम लोग प्रीवियस देख भी चुके हैं सीआई का अमाउंट माइनस पी होता है. तो यहाँ पे पी को कॉमन लेके और आगे बढ़ेंगे. पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. एंड आगे हम देखेंगे कि हमारा 200 रुपीज 210 है. ओनली फॉर्मूला डालना है और आपने आगे बढ़ना है. सेकंड क्वेश्चन. इफ Sukriti borrow 8,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded interest, then the amount to be paid by her at the end of 2 years to clear the debt is. तो इस ऑप्शन दिए हुए 8,800, ₹9,600, ₹9,680 and ₹102400. तो यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट की बात हो रही है. तो अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस आर बाई 100. पुट द वैल्यू. आपको टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है एंड अमाउंट भी दिया हुआ है. सो 2 साल के लिए है ना. वैल्यू पुट करके आप कॉस्ट चेक करेंगे एंड नाउ आंसर इज ₹9680. चले आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question third. If a man invested ₹12,000 for 2 years at rate of 10% per annum compounded interest, then the compound interest earned by him at the end of 2 years is, है ना. Put the value. CI compound interest है ना. Put the value P1 plus R by 100 the power n is the time minus 1. टोटली पुट द वैल्यू करने के बाद आपका टोटल फाइनल एंड कैलकुलेशन करने के बाद ₹25200 इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी राइट आंसर. ठीक. क्वेश्चन 4. मिस्टर राव about 1 year ₹10,000 certificate of deposit, the paid interest at annual rate of 8% compounded semi-annual. इसका ध्यान रखना है. The interest received by him on maturity is option ₹816, ₹864, ₹800 and ₹10816. फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है. C is compound interest is equal to principal into 1 plus r by 100 the power n is time minus 1. Put the value and solve it and calculate it, and final answer is ₹816. आगे बढ़े. Question 5th. The compound interest on ₹5,000 at 20% per annum for 1 by 1 by half
years compound and half yearly, है ना. ऑप्शन, यहाँ पुट द वैल्यू, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की बात हो रही है और आपने फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है एंड सॉल्व इट एंड कैलकुलेट इट एंड फाइनल आंसर इज ₹1655. वाले आपको फॉर्मूले में आपको लगाना और ऑप्शन बी ₹1655. If question 6, if the number of conversion period greater equal to the compound interest is less than simple interest, equal to simple interest, greater than or equal to simple interest, greater than simple interest. तो किसकी बात कर रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा. सो नाउ ऑप्शन डी, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. आगे बढ़े. Question 7. The present population of a city is 1 to 1200,000 if it increase at the rate 8% every year. Then the population of city after 2 years. Given the present population, rate of interest 8%, time short, and population after 2 years. Present, put the value. आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं. We know that B equal to V0 1 plus R by 100, है ना. तो आपने यहाँ पे put the value कर देना है and calculate कर लेना है. And further is the final answer 1399,680. Only put the value and formula और आपका answer. So the present population after 2 years 1399,680. आगे बढ़े. अब हमारा आ जाता है MCQs खत्म हुआ. Compound interest chapter test. So question number 1. Rupees 10,000 was lent for 1 year at 10% per annum की बात हो रही है. By how much more will the interest be if the sum was lent at 10% per annum, interest being compounded और हाफ ईयरली की बात हो रही है. सो ध्यान दीजिएगा. तो हमारा क्या दिया? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और 2%, 10 और 2%, टाइम 1 ईयर, है ना, 1 ईयर. वी नो अमाउंट, है ना, हम अपनी बात करते हैं अमाउंट एंड पुट द वैल्यू. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 plus R by 100 by 1 and put the value and solve it and calculate it. आपका फाइनल आंसर 1100. इंटरेस्ट A minus P, इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आपका 11,000 माइनस 10,000, 1,000 आपका इंटरेस्ट है. फाइनल आंसर. केस 2 क्या बोलता है? प्रिंसिपल ₹23,000, रेट 10%, है ना, और 5% क्या है? हाफ ईयरली की बात हो, ये हाफ ईयरली, है ना. यहाँ ये रॉन्ग है, सॉरी, ये चीज यहाँ गलत एंट्री है ना, इसको गलत. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो केस 1 जो था 10%, केस 2, है ना, हाफ ईयरली की बात हो रहा था. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो हाफ ईयरली 5% हो गया एंड ईयर 1 साल है तो आपका ये क्या हो गया? 2 हाफ ईयर. क्या हो गया? 2 हाफ ईयर. वी नो अमाउंट इज इक्वल टू P1 plus R the power R P1 plus R by 100 power n. तो हम पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. क्योंकि हमारा ईयरली 1 साल का है बट हाफ ईयरली होगा तो 2 टाइम कैलकुलेट होगा. इस चीज को समझने वाली बात है ना. कैलकुलेट इन फंडर, फाइनल आंसर हमारा ये आता है 11025. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस पी हमने किया 1,025 ₹1025. सो द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, है ना,
So difference between two interest by the much ना, तो 1025 माइनस 1000 जो कि हमारा यहाँ पे 1000 है, और ये हमारा डिफरेंस आया था हाफ ईयरली और ये एनुअल। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ₹25 जो कि डिफरेंस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ए मैन A man invested rupees 3072 for 2 years at compound interest. After 1 year, the money amount to rupees 3264. Rupees 3624. Find the rate of interest and amount due at the end of second year. सेकेंड ईयर के लास्ट में क्या प्रिंसिपल दिया हुआ आपको एंड आपका अमाउंट दिया हुआ है, रेट को निकालना है हमें और टाइम है 1 ईयर। पुट द वैल्यू, अमाउंट का फॉर्मूला E इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 द पावर N। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। आप P को इधर लेंगे चूंकि हमारा A और P दोनों दिया हुआ है, सो हम इनको A और P को करेंगे 1 प्लस R बाय 100, है ना। और आपको ये हमारा 1 साल का है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे एंड आप देखो आर को इधर ले गए और ये हमारा एंड आर हमारा आ गया 100/1625/4%। ओके, क्लियर। हमारा आर इतना आ गया। And the rate of interest is 25/4% per annum. Amount after 2 years. Then amount का formula P1 plus R by 100 the power N। 3072 प्रिंसिपल हमारा क्या है 3072 एंड पुट द वैल्यू, हम यहाँ पुट द वैल्यू करेंगे, है ना। एंड हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनल आंसर 3468। Hence the amount due at the end of 2 years is 3468। फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सम विल अमाउंट टू rupees 28090 is 2 years at 6% per annum। कंपाउंडेंट की बात हो रही है। ऑल्सो फाइंड कंपाउंडेंट इंटरेस्ट, है ना। तो अमाउंट हमारा दिया हुआ है 28090, रेट आपका है, टाइम 2 साल है। अमाउंट का फॉर्मूला E इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 द पावर N and put the value and solve it and आपका फाइनल आंसर ₹2500। चूंकि इंटरेस्ट कंपाउंडेंट की मांगा गया है तो हमारा यहाँ पे CI E माइनस P आपका 28090 अमाउंट है और हमारा प्रिंसिपल है 25000। तो नाउ हमारा अमाउंट इंटरेस्ट है ₹3090। हाँ, जो पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ओके, चैप क्वेश्चन 4, टू इक्वल सम। टू इक्वल सम की बात हो रही है, यानी लेंट एट 5% एंड 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, है ना, फॉर 2 साल के लिए, 1 साल में 5-6 एंड इफ द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट वॉज, मतलब दोनों का डिफरेंस हमारा दिया है ₹422। फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक तो हमें इक्वल सम की बात हो रही है, जो प्रिंसिपल की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईच सम, है ना। चलिए आगे बढ़े। हमारा केस 1 क्या है, सम अमाउंट। हमने प्रिंसिपल को कर लिया ₹100, है ना। 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, है ना, ये हमने कर लिया। ठीक है, ई का अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R बाय 100 द पावर N। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट एंड नाउ इज द फाइनल ₹441/4 क्या है अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की करें, अमाउंट माइनस P हमारा ये आ गया
है ना, 100 है। हमने जो अभी निकाला था 441/4 माइनस 100, और हमारा आ गया इसका इंटरेस्ट का 41/4 रुपीज, 41/4। केस तो क्या बोलता है, सम अमाउंट 100 रुपए टाइम टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो हमने निकाला। यहाँ A इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n, वहाँ पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो ₹280/25 क्या आया अमाउंट, जो कि 6% के हिसाब से आया। अब CI निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट माइनस P। हमने पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, हमारा आंसर क्या आया ₹309। ये 6% पे आया, क्योंकि इक्वेशन 1 और जो 5% पे आया इक्वेशन 2 हमने माने। सो डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट, दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमने पुट कर दिया वैल्यू, एंड फाइनल डिफरेंस क्या आया ₹211 एंड 100/100। If the difference is ₹211, uh, 211/100, then equal sum is equal to ₹100। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया, है ना। If the difference रुपीज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ₹422, हमारा आया ₹211/100, तो हमने 100 रुपये पे कैलकुलेट किया था, बट डिफरेंस ₹422, देन इक्वल सम हम इसको कैलकुलेट करेंगे 100 हमने 211 इंटू ये कर दिया। जब इतने का इतना है तो एक के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे, कम होगा। फिर हमें 422 का निकालना है, जब डिफरेंस इतना है तो अमाउंट कितना होगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ फाइनल कैलकुलेशन के बाद 20,000 रुपीज, 20,000। Hence, amount in case 1 P हमने जो एक्चुअल 100 से निकाला था, अब ये जो हमारा P आ गया तो हम इससे निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हाँ, तो हमारा P निकल गया, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा ₹22,050, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस P, चूंकि हमारा अमाउंट आया है ₹22,050 माइनस ₹22,000, ₹2,050 is a different compound interest for each sum, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट फॉर सेकेंड केस, है ना, जो 6% था वही आपने अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n। यहाँ पे सिर्फ ओनली आपका R चेंज होगा। पहला हमने 5% से निकाला था, ये 6% से। अमाउंट हमारा 20,000 था, फर्दर कैलकुलेटेड, और आपका अमाउंट आ गया 22,000 रुपीज, 22,472। आप माइनस करेंगे, वैल्यू रखेंगे, एंड डिफरेंस आपका आ गया ₹2472। ओके, आगे बढ़े। द कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of money for 2 years is ₹133,120, and the simple interest of sum of for the same period at the same rate is ₹1280। Find the sum and the rate of interest per annum, है ना। क्योंकि हमें क्या दिया, CI फॉर 2 years, तो हमारा CI फॉर 2 years 1331.20, एंड SI फॉर 2 years, है ना, हमारा है ₹1280। क्वेश्चन में देख सकते हैं। सो डिफरेंस हमारा दोनों का आ रहा है, एक ऐसा ही है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ज्यादा होता है, ₹5120। Hence, ₹5120 is the simple interest on 1280/2। क्यों, 2 साल है, इसको डिवाइड करके हमने 1 साल बना लिया। ₹640 फॉर 1 year, है ना। वी नो रेट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल। रेट का फॉर्मूला आप लगाओगे, है ना।
10/100 पुट द वैल्यू, आपको पुट द वैल्यू एंड आपका आंसर आता है 8% पर एनम. So the simple interest for 2 years at the rate of interest 8% per annum है ना, आपका आता है 8% पर एनम. सम की बात आती है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में आप रख सकते हैं इंटरेस्ट इंटू 100 रेट इंटू टाइम पुट द वैल्यू एंड आपका अमाउंट आ गया. क्योंकि यहाँ हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया था और हमारा जो प्रिंसिपल क्या था वही हमने लिया था 2 साल के लिए हमारा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Rupees on what sum will the difference between the simple interest and compound interest for 3 years if the rate of interest is 10%, PA is a rupees 232.50. सम अमाउंट प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया, 3 साल के लिए टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, पुट द वैल्यू अमाउंट निकालना है हमें, तो ए इक्वल टू पी 1 × 1 + r/100 पावर n एंड पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट फर्दर. आपका अमाउंट आ जाता है ₹133.10. अब हमें शेयर निकालना है, शेयर टू A-P, तो चूंकि हमने 100 लिया था अमाउंट प्रिंसिपल एंड अमाउंट हमारा आया 133.10, सो हमारा रुपीज 33.10, चूंकि हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. फर्दर आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 पुट द वैल्यू ऐसा ही निकालना है हमें. हमारे पास 100 रुपया 3 एंड 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम 3 साल के लिए ₹30. दिस इज अ इक्वेशन 2. हमने लिया डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 1. 33.10 30 इज इक्वल टू ₹3. ₹3.10 ये हमारा. if the difference is है ना rupees 3.10, this sum is 100, हमने प्रिंसिपल 100 लिया, तो जब डिफरेंस इतना है तो इतना, चूंकि if the difference हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था then the sum, तो एक्चुअली हमने 100 पे है तो एक के लिए निकाला फॉर्मूला. ये जो है आपने क्रिएट करने के लिए एक बेसिक आपको बताता हूँ. रूबी 3.10 देन सम कितना है ₹100. तो जब ₹1 है देन सम क्या होगा, कम होगा इससे, तो हम डिवाइड करेंगे किसको, 100 को इससे. एंड देन हमें और इतने के लिए निकालना, एक के लिए निकाला तो हम इसको इनटू करेंगे. पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट एंड नाउ अमाउंट इज ₹750. आगे बढ़ो. The simple interest on a certain sum for 3 years is ₹1080, and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is ₹74160. Find क्या क्या निकालना है, the rate of interest and the principal. Given that SI for 3 years ₹1080, CI फॉर 2 years है ना, एक 2 साल का है और एक 3 साल का. टाइम 3 साल है. SI फॉर 2 years निकाल लेंगे, तो हम SI को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का आ जाएगा. ₹720. सो द डिफरेंस 741, क्योंकि दोनों का 2-2 साल का हो गया, CI 2 साल का हो गया और SI भी 2 साल का हमने निकाल लिया, तो डिफरेंस निकालेंगे 2 साल का, तो हमारा 2 साल का डिफरेंस आ गया ₹2160. ₹2160 इज द SI ऑन 720/2. किसके लिए, 1 साल का. अमाउंट क्या होगा, ₹360. प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था फॉर 1 year. तो क्वेश्चन Number 1 get the rate of interest. We know that rate का formula interest into 100 principal into time, put the value and solve it. 6% हमारा rate है. जब हमारे पास rate आ गया, principal है, तो हम हमारा SI है, टाइम है, रेट है, हम निकाल सकते हैं. तो प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट हमारा 1080 into 100 6 into टाइम रेट. हमारा रुपीज क्या आ गया, 6000. क्या आ गया, प्रिंसिपल की बात आ गई.
आगे बढ़ते हैं। In what time will be rupees 2400 amount to rupees 2646 at 10% per annum compounded semi-annual? Semi-annual पे ध्यान देना है, semi-annual पे हमें ध्यान देना है। गिवन अमाउंट दिया हुआ ₹2646, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ, टाइम हमने ले लिया n हाफ ईयर। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, चूंकि सेमी एनुअल है तो हम इसको क्या करेंगे 5%। वी नो अमाउंट का फॉर्मूला p इंटू 1+r/100 हमारे पास है प्रिंसिपल 1+r/100 चूंकि n आप याद लिए 5% हमने लिया। a/p दोनों वैल्यू पता है, हम वैल्यू रखते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसका हमें स्क्वायर निकालना, शॉर्टकट का तरीका हमने आपको दे दिया है, लिंक है ना, इसमें अटैच है। गो थ्रू कैलकुलेशन, बहुत फास्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। द पावर यहाँ पे 2 आ गया, बेस सेम होने की वजह से देखो आपका बेस दोनों सेम है, तो n इक्वल टू 2, तो टाइम 2 हो गया। therefore the time is 2 हाफ ईयर, हमने यहाँ बताया था हाफ ईयर, ये 2 है तो 2 हाफ ईयर का क्या हो गया 1 साल। क्लियर है? Sudarshan invested 60,000 in the finance company and received rupees 79860 after 1.5 years. Find the rate of interest per annum compounded half yearly. अमाउंट हमारा 796, प्रिंसिपल हमारा 60,000 एंड हमारा टाइम है 1.5 ईयर, जो कि 3.5 ईयर हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप भी नो, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है p इंटू 1+r/100 एंड पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद आपका जो है ये आप सॉल्व करते जाओ, कैलकुलेट आपको बढ़ाना है 1331/1011 है ना, क्योंकि 1+r/100 फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको r100/10, तो 10% हाफ ईयरली है ना, क्योंकि हम लोगों ने हाफ ईयरली पे 3 क्वार्टर लिया था ना, हाफ ईयरली का 3 है ना, तो हाफ ईयरली का काउंट हुआ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू 2, तो कितना हो गया, ये हाफ ईयरली था तो डबल होना है, क्योंकि हम हाफ ईयरली लेते थे तो आधा करते थे, सो दैट इसको हम डबल करेंगे, तो 20% पर एनम। देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 20%। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों होगा, जब हमने यहाँ पे 3 से लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता तो हम 5% कर देते थे, सो दैट यहाँ पे हम डबल करें, क्योंकि हम हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 320,000 if the annual birth rate is 9.2% and annual death rate is, है ना, ये आपका 1.78, ये क्या है, एनुअल बर्थ रेट है, बर्थ रेट, और ये हमारा परसेंट है 9.2 डेट का। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर। बर्थ रेट 9.2 और डेथ आपका रेट परसेंट पता है, सो द गिवन नेट, मतलब दोनों का डिफरेंस है, हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, है ना। ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन माइनस करके हमारा 7.5% जो है ग्रोथ रेट है, एंड ड्यूरेशन 3 साल। Put the value population after 3 years, age would be into 1+r/100 the power and formula ये लगेगा, जो present value हमने लिया and solve it and wait, the final answer is, कैलकुलेशन के बाद हमारा आ जाएगा, है ना, Q निकालना आपने बताया हुआ है, आप उससे गो थ्रू होइएगा, 397,535 आफ्टर 3 year population जो the cost. Question number 11, the cost of a car purchased 2 years ago depreciate
जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन आता है at the rate of 20%, है ना, every year आ रहा है ना. If the present value of a car is दिया हुआ present value 3150 point is purchase price, मतलब जब हमने खरीदा था परचेज, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, है ना. और ये वैल्यू क्या है जो प्रेजेंट में चल रहा है, उस प्रेजेंट से हमको 3 साल आगे जाना. गिवन एन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार 315600, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20%. So we know that purchase price E divided by 1 plus R by 100. चूंकि फॉर्मूला हमारा E इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R by 100 होता है, तो जब 1 प्लस R by इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा किससे, अमाउंट से. एंड P तभी हमारा निकलेगा. फर्दर पुट द वैल्यू, है ना, आपने पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, है ना, सॉल्व इट. ठीक है. और आपका फाइनल आंसर आ चुका है ₹493120, 493120. ये क्या है आपका तो परचेज प्राइस, है ना, परचेज प्राइस आफ्टर 3 years, मतलब समय हमारे पास 3 साल है. P इक्वल टू डिप्रिसिएशन होगा, P इक्वल टू 1 माइनस R बाय 100, है ना, 1 - R/100. यहाँ प्लस इसलिए लेते हैं कि जब हमने खरीदा था तब की बात हो रही है. यहाँ जो हमने प्लस लिया है ये जब हमने खरीदा था तब की बात हो रही है, तो उस समय ऐड ऑन हो. और ये हमारा एज है आफ्टर 3 years, क्या वैल्यू रहेगी, तो डिप्रिसिएशन आ रहा है कितने परसेंट से, 20%. तो वन वैल्यू हम रखेंगे 31560. ये क्यों रखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, उसके बाद की बात हो रही है ना. 120/100. फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे, आपका रुपीज जो है 161587.20, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, है ना. आगे बढ़. Question number: Amar Singh started a business with an initial investment of 400,000. In the first year, incurred a loss of 4%. क्या हो गया, loss, है ना. However, during the second year, he earned profit 5%. Within third year, रोज 10%, यानी जो प्रॉफिट 5% था और 10%. कैलकुलेट हिज नेट प्रॉफिट एंड इंटायर पीरियड ऑफ 3 years, मतलब जो असली प्रॉफिट है ना, माइनस लॉस को भी माइनस करके जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसकी बात कैलकुलेट करना है. इन्वेस्ट किया 400,000, तो ये आ गया. लॉस फर्स्ट ईयर 4%, प्रॉफिट सेकेंड year 5%, and third year is 10%. No. Total amount after 3 years, तो हमने क्या करना है, P into 1 plus R by 100, है ना. तो इक्वल टू हम पुट द वैल्यू करेंगे ये फॉर्मूला में. बट एवरी ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है 3 साल, तो एक में पहले में क्या था, लॉस 4% का, दूसरे में साल 5% का प्रॉफिट, तीसरे साल 10 साल का प्रॉफिट. सो फर्दर कैलकुलेट इट एंड फाइनल रुपीज 443520, है ना. क्या है, 443,520 रुपीज. सो द नेट प्रॉफिट आफ्टर 3 years इज, अब हमारा क्या था, उन्होंने कितना पैसा लगाया तो हमारा ये क्या निकला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया इनको, 43,520 43,520. गॉट इट. तो नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर टेस्ट एंड एमसीक्यूज कंप्लीट होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4. थैंक्स फॉर वाचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जिससे आपको सही समय पे सारे नोटिफिकेशन मिल सके और जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके. बाय बाय, गुड डे.